Good morning and welcome to 6th class of solution chapter, class 12th chemistry English medium. In previous class we have studied about colligative property, relative lowering of vapor pressure, and today we are going to discuss elevation of boiling point, next colligative property. So first of all, how can you define a boiling point? If the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure, that temperature is called boiling point. Now put heading elevation of boiling point. Next topic, elevation of boiling point. Boiling point. The temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure. The temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure. Now we are going to understand elevation of boiling point. When non-volatile solute is added to volatile solvent, the vapor pressure of solvent decreases. जब हम कोई उड़नशील नहीं उड़ने वाला नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर हम वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिला देते हैं तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वह घट जाता है, और जो डिफरेंस हम देखते हैं, अगर प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको T0B अगर कंसीडर कर लें और वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो TB हो जाएगा, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू और इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. So we can write here, when non-volatile solute is added to volatile solvent, when non-volatile solute added to volatile solvent, its boiling point increases. The difference between boiling point of solvent solution and the boiling point of solvent is called elevation of boiling point.
तो द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution and the boiling point of solvent is called elevation of boiling point. So we can write here T naught B is equal to boiling point of pure solvent and TB boiling point of solution. Then del TB is equal to TB minus TB naught. Now, according to Raoult's law, for a dilute solution, the elevation of boiling point is directly proportional to the molar concentration of non-volatile solute. जो हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में मिलाया, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा, वह जो सॉल्यूट है उसके मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यही है रॉल्ट लॉ. तो हम देखेंगे रॉल्ट लॉ का स्टेटमेंट. Raoult's law. So according to Raoult's law, elevation in boiling point for a dilute solution elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of non-volatile सॉल्यूट. तो रॉल्ट के स्टेटमेंट से हमने पाया कि डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एम, और अगर हम इसे इक्वल करेंगे डेल टी बी इज इक्वल टू, तो एक कांस्टेंट लगा देंगे के बी, एंड हेयर के बी इज molar elevation constant, molar elevation constant, और इसी को हम लोग इवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं. तो हम देखें, यहाँ से हमने पाया कि डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. अब हम देखते हैं कि के बी और एम मीन्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और मोलर कंसंट्रेशन मीन्स क्या, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम by mass of solvent in kg. तो mass of solvent in kg WA. अगर हम NB बराबर लिखें, तो यहां पर तो NB इज इक्वल टू WB अब बाय MB हो जाएगा इंटू WA और डेल टी बी. यहाँ से हम देखते हैं कि ये WB दिस इज इक्वल टू NB, और ये क्या है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, और नीचे जो है ये है
मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम 1 kg या 1000 ग्राम ले लें, और दिस मोल इज इक्वल टू 1 मोल बॉइलिंग पॉइंट, when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg or 1000 gram of solvent. Now next topic is calculation of molar mass or molecular mass of solute. Now we can write here, from this relation del TB is equal to KB WB by MB into WA, or in case of gram 1000 we can multiply here 1000. And now we can calculate MB. Here MB, this is equal to KB by del TB into WB into 1000 by WA. This is final relationship of molecular mass of solute with non-volatile solute which is dissolved in volatile solvent. Now we can see graphically the graph between vapor pressure and temperature. This is vapor pressure, here the temperature. T naught T and T naught T, yes, 1 atm. This represent the slope of solvent. This is boiling point of solvent, and this slope represent here, this is boiling point of solution. And the difference between these two will be del TB, elevation in boiling point. फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने समझा कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट अपॉन इट्स नेचर. तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ये प्रॉपर्टी निर्भर करेगा. तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हमने वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाया, जो नहीं उड़ने वाला सॉल्यूट है, उड़ने वाले सॉल्वेंट के साथ जब हमने मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? क्योंकि जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिल गया, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलने के कारण हमने जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हुआ वह बढ़ गया. क्योंकि जो नेचर था वोलाटाइल सॉल्वेंट का, तो वो इजीली जो है एस्केपेबल था, आसानी से वह वेपर में कन्वर्ट हो रहा था. तो जो डिफरेंस हुआ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के बीच, उसी को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. तो द डिफरेंस बिटवीन
boiling point of solution and boiling point of pure solvent TB minus TB नॉट। और रॉल्ट का यहाँ स्टेटमेंट है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये जो है ये दिस m रिप्रेजेंट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन और मोलल कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। दिस इज मोलल कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो बहुत आसान है। अब इससे हम जो है इस रिलेशन पर पहुंचे कि डेल टीबी और केबी जो है एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, जबकि हम 1 मोल सॉल्यूट को मिला रहे हैं 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, और हम फाइनली जो मोलर मास है सॉल्यूट का जो हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसमें मिलाया, तो इसे कैलकुलेट करके हम निकाल लिए। अब जो तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझे। पहले से भी हम लोग जानते हैं कि फ्रीजिंग का मतलब होता है जो लिक्विड है अगर उसका टेम्परेचर को धीरे धीरे कम किया जाए तो वो सॉलिडिफाई होगा। तो द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of substance in liquid and solid in both phase equal। जब हम देखेंगे कि लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा सब्सटेंस का वह एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो वह जो टेम्परेचर है दैट इज ये फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमको देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तरह से हमने यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा कि व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलाटाइल सॉल्वेंट, जस्ट सेम स्टेटमेंट यहाँ रिपीट होगा। और यहाँ हम देखेंगे कि वेपर, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, यहाँ वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। और जो स्टेटमेंट मेरा होगा, जो डिफरेंस हम देखेंगे किसके बीच, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों के बीच जो डिफरेंस देखेंगे दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर हम रॉल्ट लॉ को देखेंगे और उसके हिसाब से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालेंगे। मिटा दिया जाए। Next topic will be depression of freezing point. Depression of freezing point. Depression of freezing point. This will be third colligative property. Now how can you define freezing point? Now we see the freezing point, the temperature at which vapor pressure of substance, the temperature at which vapor pressure of substance in liquid phase is equal to solid phase. Now we are going to understand the depression in freezing point. So the statement, when non-volatile solute is added to, when non-volatile
solute is added to volatile solvent, its vapor pressure decreases and consequently freezing point also decreases. Therefore, freezing point also decreases. Let T naught F is equal to freezing point of pure solvent and TF is equal to freezing point of solution. Then depression in freezing point will be, we can write here, the difference between freezing point of pure solvent and freezing point of solution is called depression in freezing point. And mathematically we can write here del TF is equal to TF naught minus TF. Now we see the Raoult law. According to Raoult law, for a dilute solution, the depression in freezing point is directly proportional to the molar concentration of solution. So we can write here, according to Raoult's law, the depression in boiling point is directly proportional to molar concentration of solution. कट तो नहीं रहा है, तो कट रहा है, ठीक, फिर से लिखते हैं, चलिए, according to Raoult's law, for a dilute solution, elevation, not depression, depression in freezing point is directly proportional to the
मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो छोटा लिखने से अच्छा है, फिर से हम मिटा लें। इतना तो स्टेटमेंट समझ में आया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू सॉलिड फेज। और जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और यही मुख्य कारण है फ्रीजिंग पॉइंट के भी डिक्रीज होने का। और जो डिफरेंस होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू द freezing point of solution, that is called depression in freezing point, and according to Raoult law the for a dilute solution depression in freezing point is directly proportional to the molar concentration, that means del Tf is proportional to m। अब यहां से हम फिर से देखेंगे। चलिए, del Tf is proportional to m and we can write here, अगर हम ये del Tf is equal to करेंगे तो Kf into m, और अगर हम m का वैल्यू पुट करें तो m हो गया WB, और डायरेक्टली हम एक स्टेप में NB बाय WA लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू KF WB बाय MB इंटू WA, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से कि m इज इक्वल टू होता है NB बाय WA और NB होता है WB बाय MB। हम समझने का प्रयास करें कि ये जो है ये है मोल ऑफ सॉल्यूट, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड दिस विल WB is equal to mass of solute, और नीचे है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम जानते हैं दिस इज मोल, तो मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आसान है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और हम यहाँ पर चूंकि मोलैलिटी देख रहे हैं, मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी और ग्राम। तो अब हम यहाँ से KF ये व्हेन 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg or 1000 gram of volatile solvent. Now next heading, calculation of molar mass of solute, because it is colligative property solute के नंबर पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि इसका मोलर मास कितना होगा। तो फ्रॉम दिस रिलेशन
we can write here del TF is equal to KF WB by MB into WA, and MB is equal to KF by del TF into WB by WA, and multiplied above with 1000 in case of ग्राम। तो इस तरह से हमने जो मोलर मास है सॉल्यूट का जो नॉन वोलेटाइल था उसे हम कैलकुलेट किया। अब हम देखेंगे कि ग्राफिकली हम इसे समझने का प्रयास करें कि ये है मेरा वेपर प्रेशर, ये है टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हम जो ग्राफ देखेंगे, यहाँ हम T को दिखाएंगे और T नॉट को दिखाएंगे, और एक यहाँ से हम बात कर रहे थे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम व्हेन बोथ द सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और दो सॉल्यूशन एक दूसरे से सेपरेटेड है, तो जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा, जिधर अधिक सॉल्वेंट है उधर से कम की ओर, यही कहलाएगा ऑस्मोसिस। तो हम देखेंगे, हेडिंग करें ऑस्मोसिस। और लेटर भी थोड़ा छोटा आ रहा है, हम बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from dilute to concentrated solution when it is, or you can write here till equilibrium when both separated from semi-permeable membrane, and the definition of semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane, the membrane through which only, स्पष्ट आ रहा है, the membrane through which only solvent molecule can pass. For example, here parchment paper, cell membrane, cellophane, copper ferrocyanide,
these all are the example of semi permeable membrane. Now we see osmotic pressure, and how can we say osmotic pressure is a colligative properties. So osmotic pressure, the definition of osmotic pressure, the extra pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis. The extra pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis. मिटा देते हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखेंगे यहाँ कि जो रॉल्ट का इंफॉर्मेशन था, हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखेंगे यहाँ P के जगह हम पाई लिख सकते हैं और पाई इज इक्वल टू nRT बाय V लिख सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T दैट इज गिवन टेम्परेचर है। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स जो रिलेशन है, जो चेंज हम देख रहे हैं वो ये मोलर कंसंट्रेशन जो N/V, दैट मीन्स वी कैन राइट हेयर CRT, ये इसके कारण होगा और ये मोलर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का। तो हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके आधार पर हम सॉल्यूट का जो मोलर मास देखेंगे तो हम देखेंगे पाई इज इक्वल टू, हमने देखा nRT बाय V, और हम जो N है, N हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्यूट N इज इक्वल टू हम देखते हैं कि WB बाय MB, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं WB इंटू R इंटू T बाय MB इंटू V, और ये पाए। अब हम फाइनली MB इज इक्वल टू WB इंटू RT बाय, ये नीचे हम पाए लिख दिए और V हो गया। इस तरह से हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर जो मॉलिक्यूलर मास होता है सॉल्यूट का वो निकाला। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे और रिवर्स ऑस्मोसिस, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेन ऑफ लॉ, एसोसिएशन, डिसोसिएशन एट्सेट्रा। हम मीन्स नेक्स्ट क्लास जो होगा इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, और आप लोग इसी तरह बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।